Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this next part of structural dynamic series of lectures. So last lectures में जो है हमने वो damped harmonic excitation का पढ़ा and then उसका जो second part था उसके अंदर फिर हमने effect of resonance को consider किया and inshallah in this part we'll be discussing about the phase lag and response factor. ठीक है, so the topic is a continuation of the initial topic that we were discussing about the harmonic vibration with viscous damping, and our particular emphasis in today's part, in this particular part, is the maximum deformation and phase lag. The concept of this maximum deformation and phase lag has already been discussed while discussing the force vibration of the undamped structure. So the effect of phase lag, the maximum deformation concept was already been discussed there. And this is the extension of those discussions to the damped structure. And keep in mind that we are discussing the force harmonic excitation. This is not the free vibration. This is the force vibration, and the type of force that we are considering is the harmonic forces. So the steady state, as you already know up till now, that there were two sort of responses. One was the steady state response, the other was the transient response, complementary and the particular. Okay? The particular response was linked to the steady state response, and the complementary solution was linked to the transient response. So we are right now discussing the steady state deformation of the system due to harmonic force described by equation 4. So I am rewriting that particular equation number 4 again. So that was the particular solution, or the steady state solution that stated that UPT, P stand for the particular solution, C sin omega t plus D cos omega t. Right? So as you can see, there are two constants, one is the C and the other is the D. So हम देखते हैं कि ये C क्या है और D क्या है. Question number 10 में हमने last lecture में derive किया है कि C is equal to this thing. So I've rewritten that equation number 10 again here, and this is the equation number 11 that describes the value of D. So we'll see that putting the value of C and D, what will be the new form of the equation number 4. Okay. So this equation, which is equation number 4, with the values of C and D, can be written into this form, that ut is equal to u naught sin omega t minus phi, r in the other term when you are including the factor response factor rd. ठीक है, इन टर्म ऑफ rd अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ आप देखते हैं कि UST नॉट का भी फैक्टर इसके अंदर आ जाता है. तो ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई हैं, और अगर आपके जहन से स्किप हो चुकी हैं तो आप जाके उन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं. आपके पास अवेलेबल है. मैंने जैसे आपको अब यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. तो आपने करना ये है कि अगर आपको यहाँ तक की समझ है और आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ आप देख रहे हैं वो अगर आपको पता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड एंड यू जो साथ साथ चलते रहेंगे. और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ कन्फ्यूजिंग नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन वेरी ईजिली गो बैक टू दोज लेक्चर एंड देन आप उसको दोबारा रिविज़िट करके अपनी मेमोरीज़ को फ्रेश कर सकते हैं. ठीक है. तो UST नॉट इज द स्टैटिक डिफॉर्मेशन एंड RD इज द डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर. तो अगर आपको पता है कि RD जो है वो UST नॉट अपॉन U नॉट अपॉन UST नॉट होता है. ठीक है. तो अगर हम इसको दोबारा से ये RD की वैल्यूज़ के अंदर लिख लेते हैं तो आपको ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में नज़र आ रही है U नॉट की फॉर्म में, ये दोबारा से मिल जाएगी. ठीक है. तो RD इज इक्वल टू U नॉट डिवाइड बाई UST नॉट. अगर आप RD की वैल्यू डालते हैं तो UST नॉट और UST नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड देन अगेन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है. तो ये इक्वेशन नंबर 4 का विद वैल्यूज़ ऑफ C एंड D ये शक्ल नज़र आ जाती है. और अगर आपने इसको मज़ीद देखना है, यहाँ अगर आप देखते हैं कि जो U नॉट है, दिस U नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट C स्केयर प्लस D स्केयर. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, वैल्यूज़ ऑफ C एंड D है, इक्वेशन 4 कैन ऑल्सो बी रीरिटन इन दिस फॉर्म, एंड विद इन दिस इक्वेशन नंबर 23 द वैल्यू ऑफ U नॉट इज़ इक्वल टू C स्केयर प्लस D स्केयर एंड द होल अंडर रूट. ठीक है. तो ये आपके पास इस फॉर्म के अंदर भी आ जाता है.
और जो फाई है वो फेज़ एंगल है, आप इसके बारे में भी जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स डी अपॉन सी। तो यहाँ से हम यू नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सी एंड डी, और इसी तरीके से फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं कि हम ये यू नॉट की वैल्यू और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करके ये क्वेश्चन नंबर 23 में डालेंगे और फिर देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ तो ये आपके जहन में रहे कि हम इस टाइम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और फेज़ लैग को कर रहे हैं, इसलिए जो आप टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं वो आर डी की टर्म आपको नज़र आ रही हैं और फेज़ एंगल फाई की टर्म नज़र आ रही हैं, ताकि हम फैक्ट देखना चाह रहे हैं कि जो डैम्प स्ट्रक्चर है अगर उसके ऊपर हार्मोनिक्स ये फोर्सेस लगती हैं तो वो स्ट्रक्चर फिर किस किस्म का रिस्पॉन्स और किस किस्म का बिहेवियर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चूँकि हमारी जितनी भी इक्वेशन है हम वो वाली इक्वेशन में से पिक कर रहे हैं जहाँ इन चीज़ों का इफेक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है, जिसमें रिस्पॉन्स फैक्टर और फेज़ एंगल हैं। ठीक है, तो ऑन द कंट्री अगर आपने वहाँ जो हमने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस वाली चीज़ को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ सारी चीज़ें वो थी जो कि रेजोनेंस का इन्फ्लुएंस को इंक्लूड कर रही थी, और रेजोनेंस का इन्फ्लुएंस उसके अंदर हम बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे थे, वो चीज़ें फिर हमने उसके अंदर देखी थी। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट स्लाइड में थी, क्योंकि मैंने कहा बार बार जाना वहाँ मुश्किल होगा तो मैंने 23 को दोबारा से यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। ये वही ये यू नॉट की वैल्यू है जो कि आप जानते हैं कि क्या है। ठीक है, और ये जो है फिर आपके पास फाई की वैल्यू है, इसको भी आप जानते हैं कि क्या, ये वही है जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर लिख रखी थी, हमने इसको दोबारा रिपेस्ट किया है। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, जो लास्ट इक्वेशन थी उसको 10 और 11 का नाम दिया हुआ था, वहाँ से सी और डी की वैल्यू अगर आप ये यू नॉट के अंदर पुट करें और फाई के अंदर पुट करें तो लेट्स सी हमें क्या रिस्पांस मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास आर डी है, आर डी इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन यू एस टी नॉट, मैंने वहाँ भी जिक्र किया था। ठीक है, तो ये सी प्लस डी अब इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये इतनी बड़ी पूरी की पूरी चीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस होल थिंग इज़ द वैल्यू ऑफ डी, सो दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी आगे चल के, तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मज़ीद इसको मुख्तसर किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो ये स्टेप हैं जो कि मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज स्टेप्स फॉर दोज स्टूडेंट हु आर रियली क्यूरियस, हु आर रियली एंथुसियास्ट अबाउट द मैथमेटिक्स एंड अबाउट द derivation of all these equations. So for them I have included all these things. ठीक है, तो at the end of the day that the equation that matters to us would be the end equation, क्योंकि इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती। अगर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो यकीनन आप उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जिस तरह आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई इंक्लूड करने का मकसद ये था कि हम सी की वैल्यू डाल रहे हैं, हम डी की वैल्यू डाल रहे हैं, हम किसके अंदर डाल रहे हैं, हम डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर आर डी के अंदर डाल रहे हैं। आर डी क्या था वो हमने बताया कि भाई यू नॉट डिवाइडेड बाई यू एस टी नॉट था। फिर हमने कहा कि भाई यू नॉट क्या था, हमने कहा भाई यू नॉट इज अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, एंड देन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी एंड कैलकुलेटिंग द डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर आर डी। ठीक है, सो दिस इज़ दी आर डी जो कि लाइट पिंक है, आई थिंक ये कलर, इसके अंदर मैंने बॉक्स को कलर कर दिया सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू विजुलाइज। ठीक है, टू सी, so this is the value of RD after all this simplification calculation after putting the values of C and D. So this is the dynamic response factor किस चीज़ के लिए, for dam structure, and that dam structure is going under the effect of the harmonic force. ठीक है, we are not considering the periodic force. The four type of force is harmonic and the type of जो डैम्पिंग थी उसके अंदर वो डैम्प्ड है, अनडैम्प नहीं है। तो अगर डैम्प स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो आर डी का फैक्टर आएगा ये आ जाएगा। तो डैम्प स्ट्रक्चर की इक्वेशन डिराइव कर लेने के बाद जो हम चीज़ अच्छी होती है कि अगर हम सिर्फ डैम्प स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो तो हम इसके अंदर अगर डैम्पिंग को हम ज़ीरो ले लें तो हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन वही हो जाएंगी कोई जो अनडैम्प की हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो ले ले तो आपके पास सारी की सारी इक्वेशन वही हो जाएंगी जो कि फ्री वाइब्रेशन के अंदर आती हैं। तो ये जो डैम्प स्ट्रक्चर का डिस्कशन होती है ना, ये बड़ी कंप्रिहेंसिव होती है एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल दी प्रीवियस कंसिडरेशन जो थी, जिसमें आप डैम्पिंग को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, फोर्सेस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो दिस इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, the free vibration, the force vibration, the force part, the free vibration part. So by simplifying these equations you can get to the any other previous consideration that we have already studied. ठीक है, सो यहाँ तक हमने आर डी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली कि दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डी। और जब दूसरी चीज़ थी फेज एंगल फाई, वो हमने बताया था कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस डी अपॉन सी। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी एंड सी, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल गिव यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर सी एंड डी इन दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस थिंग।
कि भाई फाई जो है वो इतनी लंबी चौड़ी चीज़ आ जाएगी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। आपने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इतनी मुख्तसर हो गई। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मज़ीद थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये जो है इसकी नेक्स्ट स्टेप में ये इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन आ गई है, ठीक है। तो फाई इज़ इक्वल टू जो माइनस साइन था वो ये इस माइनस साइन को ख़त्म कर दिया। सो टेंजेंट इनवर्स 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1 माइनस this thing. So this equation number 26 is the phase angle for damped structure undergoing force vibration, and this equation number 25 is the dynamic response factor for the damped structure undergoing force harmonic vibration, ठीक है। So अब इक्वेशन नंबर 23 जो है, आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ आर डी, आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ फाई, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी जिसके अंदर आर डी का भी फैक्टर था और ओमेगा टी माइनस फाइव वाली चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 23 को यू कैन गो बैक एंड सी द इक्वेशन नंबर 23। वी आर प्लॉटिंग दैट इक्वेशन नंबर 23 नेक्स्ट स्लाइड फॉर 3 वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। यहाँ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की हम 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन जो डैम्पिंग रेशियो है वी आर फिक्स कर रहे हैं हम उसको, और किस वैल्यू पर फिक्स कर रहे हैं, वी आर फिक्सिंग दैट ऑन अ वैल्यू ऑफ 0.2। सो लेट्स सी, जिस तरह आपने पहले भी देखा है कि एक इक्वेशन आती है और उस इक्वेशन को जब हम प्लॉट कर देते हैं तो उस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने में, उस इक्वेशन को कंप्रीहेंड करने में हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली आसान मुश्किल होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप उस चीज़ को देख लें तो वो देखी हुई चीज़ पे यकीन करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अगर 1 है और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 0.5 है तो यू विल गेट दिस रिस्पांस फैक्टर, आधे का फ़र्क है, ठीक है। तो फिर ये जो आपके पास डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर आएगा वो दैट वुड बी अराउंड 1.29, ठीक है। तो जो रेड में लिखा हुआ है वो डायनेमिक रिस्पांस है, और ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू में ड्रा हुआ है या डैश लाइन में ड्रा हुआ है, दैट इज़ द स्टैटिक रिस्पांस, ठीक है। तो वन इज़ द स्टैटिक रिस्पांस, द अदर इज़ द डायनेमिक रिस्पांस। तो अगर आप दोनों का फ़र्क देख रहे हैं तो डायनेमिक रिस्पांस जो है वो यकीनन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये तो हमने पहले भी देख चुके हैं कि अफेक्ट आता है। एंड दिस इज़, चूँकि अब आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जो 1 आ गई है जिसको आप रेजोनेंस का नाम देते हैं, तो यहाँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने रेजोनेंस को देखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कई फोल्ड जो है वो बढ़ता है, और फिर एक एनवेलप जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एक डैम्प्ड स्ट्रक्चर में एक विद इन दी एनवेलप उसका रिस्पांस स्टेडी स्टेट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और फिर हमने जब अनडैम्प्ड को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ भी ये कहा था कि वहाँ जो है वो फिर इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कस किया था कि भाई इन्फिनिटी से पहुँचने से पहले ही अगर स्ट्रक्चर डक्टाइल है तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, फेलियर आ जाता है, और अगर स्ट्रक्चर ब्रिटल है तब उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, एंड देन दी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी डज नॉट रिमेन इक्वल टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और फिर रेजोनेंस रहती नहीं है। लेकिन यहाँ का जो केस है, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देख रहे हैं तो ये डैम स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस है, और जो स्टैटिक रिस्पांस है, डायनेमिक रिस्पांस का आप फ़र्क देख रहे हैं, दैट इज़ 2.5 टाइम एज कम्पेयर टू दिस। तो ये जो डैश लाइन आपको नजर आएगी दैट वुड बी मोर और लेस द सेम, बिकॉज दिस इज स्टैटिक रिस्पांस, ठीक है। तो जो डायनेमिक रिस्पांस होगा वो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप यहाँ जो एक और चीज़ भी गौर करने वाली चीज़ है वो ये चीज़ है, ये, ठीक है। ये जो है ये आपका फेज़ एंगल है कि कितना उसके अंदर फेज़ का शिफ्ट आया है। यहाँ अगर आप देखते हैं जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब हाफ पे थी तो जो फेज़ एंगल था वो दैट वाज ओनली 0.041 रेडियन, आई थिंक दिस इज रेडियन, एंड दिस वाज 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फेज़ है, शिफ्ट है, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, जाके हमने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ले ली है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर रिड्यूस हो गया, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्ट्रक्चर का जो रिस्पांस फैक्टर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जो इक्वेशन से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसी इक्वेशन नंबर 23 थी, उसके अंदर जब हम वैल्यूज़ डालते हैं और जब हमें रिस्पांस मिलता है वो आप देख सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक रिस्पांस कितना कम हो गया, इट्स ओनली 0.23, ठीक है। 1.29 फॉर frequency ratio of 0.5, and for the case of resonance it is 2.5 time, and for the frequency ratio of 2 where forcing frequency is 2 times the natural frequency, and in that case the dynamic response factor reduces only to 0.32. And the second observation that you can also observe in that particular equation is the phase angle shifts, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नियरली एक दूसरे को ऑपोजिट फेज एंगल पे चले गए। ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि आउट ऑफ फेज़ हो जाता है, कि अगर आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो डिफॉर्मेशन दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो फेज़ एंगल का जो इफेक्ट था वो हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, तो यकीनन आपको आपके जहन में चीज़ें होंगी वो कंसेप्ट। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन
number 23, and that equation number 23 is the damped structure undergoing the effect of force harmonic vibration. ठीक है. So the values of R, D and phi computed from equation 25 and 26 are identified. हमने फाइंड आउट कर लिए. जो स्टैटिक डिफॉर्मेशन है, ये मैंने येलो में लिखा है UST. दिस इज स्टैटिक डिफॉर्मेशन जो वहाँ आपको ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर नज़र आ रहा था. P नॉट K अपॉन इंटू साइन ओमेगा टी इज शोन बाय द डैश लाइन ड्यू टू PT विच वेरीज विद टाइम जस्ट एज डज द अप्लाइड फोर्स. ठीक है. तो ये जो स्टैटिक डिफॉर्मेशन है ये भी टाइम डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फोर्स आपकी टाइम डिपेंडेंट है, तो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो आपका फोर्स है उसका स्टैटिक इफेक्ट होगा. ठीक है. और हर टाइम इंस्टेंट को आपके जो फोर्स है उसका डायनेमिक इफेक्ट होगा. तो वो जो इस इक्वेशन में ब्लू और रेड आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं, दैट इन फैक्ट शो द स्टैटिक डिफॉर्मेशन एंड देन उसके साथ साथ आपको जो डायनेमिक डिफॉर्मेशन है वो भी नज़र आ रही है. ठीक है. So the steady state motion is seen to occur at the forcing period. ये forcing period के ऊपर होगा, जिस तरीके की फोर्स लगी हुई है उसी हिसाब से उसका steady state response भी डेवलप होगा. But with the time lag of this will be the time lag for the steady state response, and this phi is called the phase angle or the phase lag. ठीक है. ये चीज़ें क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा क्विक जा रहा हूँ कि फेज़ एंगल, फेज़ लैग, ये इतना हमने डिस्कस किया है. और मुझे तो इंशाल्लाह उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप सब बिल्कुल इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि फ़ेज़ लैग क्या है, फेज़ वो क्या है. ठीक है. तो इसलिए अब थोड़ा सा चीज़ें, चूँकि हम एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस एश्योरेंस के साथ मैं चल रहा हूँ और इस यकीन के साथ मैं चल रहा हूँ कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है. ठीक है. सो ए प्लॉट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिस्पांस क्वांटिटी अगेंस्ट द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व. तो दो चीज़ों का रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी और रिस्पांस का. ठीक है. कि कितनी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है और उसके मुकाबले में रिस्पांस कितना बन रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अब आगे चल के हमारे लिए बड़ी अहमियत का वो बनती चली जाएंगी. ठीक है. तो ये डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर RD है. इस तरह की फिगर आपने पहले भी देखा होगा कि हमने डिस्कस की हुई है. ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज़ द फेज़ एंगल. ठीक है. फ्रीक्वेंसी रेशियो आपके पास ये एक्स एक्सिस पर नज़र आ रहा है. द सेम फ्रीक्वेंसी रेशियो यहाँ भी जो है वो यही फ्रीक्वेंसी रेशियो है, क्योंकि इस तरह की फिगर हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो डैम्पिंग रेशियो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है. मेरा ख्याल है ये 1%, 10%, 20%, 70% एंड देन 100% जिसको क्रिटिकली डैम्प्ड कह रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर है वो रेड जो था 1% का था, फिर ये 10% पर आया. तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो 5 टाइम रिस्पांस फैक्टर आ गया. ठीक है. वहाँ अगर आपने देखा तो हमने 0.5 पे देखा था, 0.055% के ऊपर देखा था. ठीक है. तो इस तरीके से जब आप 2 पे गए हैं तो 2 पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट समथिंग है, और वहाँ जो 5% पे हमने लास्ट फिगर में देखा था वो मेरे ख्याल में कितना था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, वो लास्ट स्लाइड में आप जाके देख सकते हैं. तो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर जो है विद द इंक्रीज इन डैम्पिंग, द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर एंड इट्स. वैसे भी अब जो हमारा कॉमन सेंस और जो कंसेप्ट बना है उसमें हमें यही पता चला है कि डैम्पिंग जो है वो रिस्पांस को रिड्यूस करती है. ठीक है. हमने ये जो डोर क्लोज़र था उसकी एग्जांपल देखी थी कि जितना हमने इसको स्क्रू टाइट करके डैम्पिंग बढ़ाई उतना ही जो है वो उसने रिस्पांस को स्लो कर दिया था और दरवाज़ा उतना ही स्लो जाके बंद हुआ. तो ये तो अब हमारा कंसेप्ट मेरे ख्याल में बड़ा ही आराम से बन चुका है कि डैम्पिंग का जो इन्फ्लुएंस है रिस्पांस के ऊपर वो यही है कि विद इंक्रीज इन डैम्पिंग द रिस्पांस वुड आल्सो डिक्रीज़. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है. ठीक है. ये तो हमने डैम्पिंग और इसका रिलेशनशिप देख लिया. अब ये एक्स और वाई एक्सिस जो है इसका भी देख लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर आपके पास 1 है तो ये हमें पता है कि रेजोनेंस है तो एम्पलीट्यूड जो है वो कई टाइम होता है. जो आपके पास कम डैम्पिंग है उसके अंदर रेजोनेंस के अंदर आपके पास अनबाउंडेड आ जाता है. ठीक है. आपने डैम्पिंग बढ़ाई तो आप ये देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज़ रिड्यूसिंग. और यहाँ अगर आप इस फैक्टर पे देखते हैं 70% पे और 100% पे, तो यहाँ आप जाके आप बड़ी आसानी के साथ देख लेते हैं कि जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर दैट इज इवन लेस देन 1. ठीक है. एंड एज यू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी रेशो, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से रिडक्शन हो रही है 0.5 एंड दिस इज़ फर्दर गोइंग टुवर्ड्स 0. जैसे जैसे हम इसको रिड्यूस करते हुए चले जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो एक के जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर है 1 के करीब आ रहा है. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी तो आपका डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर जो है वो
स्टैटिक रिस्पांस के ही बराबर होगा। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको देख रहे हैं कि आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी रेशियो को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी रेशियोज़ के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है तमाम की तमाम जीरो के ऊपर जा रहा है। तो इसका इन्फ्लुएंस, ये जो इफेक्ट ऑफ जीरो है और हाई फ्रीक्वेंसी रेशियो है, ये लास्ट टाइम मैंने वीडियोस भी दिखाई थी और उसको हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि जो रिस्पांस फैक्टर आता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ये के अंदर कोई डिफॉर्मेशन आ ही नहीं रही होती अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं। तो वो अगर आपको याद होगा कि हमने तीन वो थे, एक स्मॉल साइज़ का था, एक मीडियम साइज़ का था और एक टॉल था। तो जो जैसे जैसे फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एक्सीड करती जा रही थी, जो टाल स्ट्रक्चर था वो उसके अंदर डिफॉर्मेशन कम होती चली गई। फिर जो हमने मज़ीद बढ़ाई तो वो मिडल वाले में कम होती चली गई। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेशियो के लिए जो है वो ज़ीरो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी रेशियो और फेज़ एंगल का सवाल है, तो हमने ये पहली चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी रेशियो है उसमें फेज़ एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रही है। तो सेम रिस्पांस अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको इस रेंज के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये आउट ऑफ फेज़ 90 से जब ऊपर हो जाता है तो फिर ये आउट ऑफ फेज़ हो जाता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। तो ये चूँकि सारी डिस्कशन मैंने कर दिया, अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि सच अ प्लॉट फॉर डिफॉर्मेशन यू इज़ गिवन इज फिगर वेयर इन द डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर आर डी, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 से आया था, वो ये है आर डी, ठीक है। फॉर इज़ प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन फॉर अ फ्यू वैल्यूज़ ऑफ जीटा। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ ऑफ जीटा के लिए हमने इसको प्लॉट किया है। एंड ऑल द कर्व्स आर बिलो दी जीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इन फिगर। अब जो नीचे वाली फिगर आ रही है दैट इज़ जीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो कर्व है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये है, सॉरी फ्रीक्वेंसी रेशियो कह रहा हूँ, डैम्पिंग रेशियो इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है जो रेड से बनाया हुआ है ये अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1% तक डैम्पिंग थी, लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल इसको ज़ीरो करके दिखा दिया है। तो ये आपको इस कर्व को आप पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ ये चीज़ हो जाती है फेज़ एंगल में और ये टोटली 180 पर चला जाता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास अनबाउंडेड हो जाता है और लो फ्रीक्वेंसी रेशियो के लिए 1 के करीब रहता है। और ये √2 का हमने आपको बताया था कि दिस इज़ √2, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने इसलिए आपको यहाँ शामिल कर दी है कि यू कैन वेरी इजीली कंपेयर दिस ग्राफ विद दिस ग्राफ सो दैट यू कैन कंपेयर व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफॉर्मेशन फैक्टर ऑफ द डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर हम उसको लिखें तो फिर देखें तो फिर कैसे आएंगे। तो ये वो उसका कंपैरिजन है अनडैम्प्ड और डैम्प्ड स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो अब इसका कंक्लूजन निकाल रहा है जो कि हमने अपनी डिस्कशन में अभी कर ही लिया है कि डैम्पिंग रिड्यूसेस आर डी एंड हैंस द डिफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड एट ऑल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि डैम्पिंग जो है वो आर डी को रिड्यूस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिडक्शन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। उसका जो इफेक्ट था एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी पर वो भी देख लिया कि यस इट डज डिपेंड, इट्स वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी एंड एग्जामिन फॉर 3 रीजन ऑफ द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी स्केल के लिए एग्जामिन किया है, ठीक है। सो जो फ्रीक्वेंसी रेशियो जो हमने पहले भी देखे थे 3 रेशियो थे। अगर हमने ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 के लिए देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं और देन फिर इज इक्वल टू 1 के लिए डिस्कस करते हैं, लास्टली वी डिस्कस इट फॉर द ग्रेटर देन 1। तो इस तीनों के लिए डिस्कशन हमारी हो गई है। उसकी समअप है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी रेशियो इज़ लेस देन 1 एंड टाइम पीरियड इज़ वेरी मच ग्रेटर देन टी एन इम्प्लाइंग दैट द फोर्स इज स्लोली वेरिंग, ठीक है। ये हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है बहुत कम होता है तो इसका मतलब ये कि फोर्स बहुत स्लोली वेरी कर रही है। आर डी इज़ ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन 1। हमने देखा इस फिगर में कि बहुत 1 के करीब करीब वैल्यू थी एंड इज़ एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द डैम्पिंग, ठीक है। तो वैसे डैम्पिंग उसका उस पर बहुत ज़्यादा कोई असरात आ ही नहीं रहा अगर आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो आर डी इज़ वेरी नियरली इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 25 में आप डालते हैं, ठीक है। और यू नॉट जो आ जाता है वो दैट इज़ ऐसे आ जाता है जैसे आपके पास स्टैटिक है। जो उसके अंदर पहले आप देख रहे थे कि हमने यू एस टी नॉट के साथ टी भी लिखे जा रहे थे। तो अब वो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो यू नॉट जो है दैट वुड बी इक्वल टू यू एस टी नॉट एंड यू कैन से दैट वुड बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन के, जिसके लिए हम पहले ये पर्टिकुलर इक्वेशन बना चुके हैं। अब इस रिजल्ट का इम्प्लीफिकेशन क्या है? तो दिस रिजल्ट इम्प्लाइज दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द डायनेमिक रिस्पॉन्स is essentially the same as the static deformation and is controlled by the stiffness of the system।
तो यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंस काम की चीज़ है वो ये आ रही है कि अगर आपके पास फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे हैं दो लेस देन का साइन हमने लगाया है, इसका मतलब ये कि वेरी मच लेस देन 1 एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी ज़ीरो वैल्यूज़ के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो फिर उस केस में जो आपके पास रिस्पांस फैक्टर है, डायनेमिक रिस्पांस है, वो स्टैटिक रिस्पांस के इक्वल है और स्टैटिक रिस्पांस जो है वो P0/K है। तो यहाँ जो है फिर आपके पास स्टिफनेस रोल प्ले कर लेती है। तो अगर आपके पास फोर्स बहुत स्लोली वेरिंग है तो इन दैट केस जो आपके पास रिस्पांस फैक्टर है वो स्टिफनेस से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आगे वाली चीज़ों के लिए फिर कहीं डैम्पिंग रोल प्ले कर रही होगी, कहीं कोई और चीज़ रोल प्ले कर रही होगी। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में वेयर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, इन दैट केस स्टिफनेस प्लेज द रोल इन दैट केस, ठीक है। सो नेक्स्ट केस, if the frequency ratio is very much greater than 1, implies that the force is rapidly varying, RD tends to 0। ये तो हमने देखा था कि RD बिल्कुल वहाँ जो कर्व की वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल नीचे की तरफ, जीरो की तरफ, √2 से भी नीचे चली गई थी और जीरो की तरफ जा रही थी, ठीक है। सो RD tends to 0 as omega upon omega increases and essentially unaffected by the damping। और फिर यहाँ जो है उसका काम डैम्पिंग का, उसका यहाँ भी इफेक्ट नहीं रहता। जब नहीं रहता तो फिर हम देखते हैं कि फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ये जो फैक्टर था डोमिनेंट हो जाता है इन इक्वेशन 25, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर आप वो इक्वेशन नंबर 25 के अंदर ये वैल्यूज़ को डालते हुए आगे चलेंगे, इसका स्केल ले रहे हैं, ओमेगा एन की वैल्यू ये डाल रहे हैं, तो ये जो आपके पास U0 आता है वो UST0 के साथ इस तरीके इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो आपने ज़ाहिर जो लगाई हुई है, एंड दैट फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर दैन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सो इन दैट केस मास प्लेज अ रोल। जब स्मॉलर देन था, व्हेन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो लेस देन 1 था और वेरी वेरी लेस देन 1 था, इन दैट केस स्टिफनेस वाज कंट्रोलिंग द डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस जो है वो मास इज कंट्रोलिंग द फैक्टर। So this result implies that the response is controlled by the mass of the system. First case stiffness of the system, this case mass of the system, and the third case that is जो कि अभी आने वाला है वो जो रेजोनेंस वाला केस है वो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये this is the third case. If the frequency ratio is equal to 1, that is the forcing frequency is close to the natural frequency, RD is very sensitive to the damping। यहाँ पर डैम्पिंग का बड़ा आपने देखा था कि काम है, जैसे आपने वैल्यूज़ देखी थी 1% के लिए, फिर हमने हम 10% और 20%, 50%, जैसे जैसे आप डैम्पिंग रेशो बढ़ाते चले गए उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, लेकिन लोड उसके लिए डैम्पिंग का कोई काम नहीं था, ठीक है। फॉर द स्मॉलर डैम्पिंग वैल्यूज RD कैन बी सेवरल टाइम लार्जर देन व्हेन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द फिगर, इम्प्लाइंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द डायनेमिक रिस्पांस कैन बी मच लार्जर देन द स्टैटिक डिफॉर्मेशन। क्योंकि RD जब 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये कि डायनेमिक जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्टैटिक रिस्पांस, ठीक है। तो इन दैट केस UST0/2 जीटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें चूँकि जीटा की वैल्यू पता है कि 2m ओमेगा n है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ मिल मिला के ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ डाली आपने, तो जो फाइनल आपके पास फिगर आती है वो U0 इज इक्वल टू P0/C ओमेगा n। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ रोल प्ले कर रही है, C कर रही है, डैम्पिंग प्लेज द रोल। तो रेजोनेंस के लिए अगर आप देख रहे हैं कि आप लेट सपोज कोई एनालिसिस या कोई डिज़ाइन करने जा रहे हैं और आपको पता है कि जो आपकी मशीन है या जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी जो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है और आपके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का रेडिली कंपैरिजन करेंगे कि भाई व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्सिंग एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड देन बेस्ड ऑन योर रेशियो दैट यू अचीव यू कैन से कि आपको पता चल जाएगा रेडिली कि अब आपने डैम्पिंग से इस चीज़ को कंट्रोल करना है, डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर को, या मास से आपने करना है, या फिर थर्ड चीज़ जो थी वो आपने स्टिफनेस से करना है, ठीक है। सो दैट इज़ ये इसका जो बेसिक ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद था वो ये था कि आपको पता चल सके कि डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी यू शुड बी एबल to know, you should be able to understand how exactly the response would affect, whether the stiffness would affect the response or the mass would affect the response or lastly the damping can affect the response। तो crux is कि एक केस में डैम्पिंग कर रही है, एक केस में स्टिफनेस कर रही है और एक केस में मास कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ जब हमें रिजल्ट मिल गया कि डैम्पिंग से कर रही है। समरी या देखिए मैंने समरी बना के आपको दिखाई है कि ये जो फोर्सिंग का जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है इज़ वेरी मच लेस देन 1,
तो यू नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन के कंट्रोल्ड बाय द स्टिफनेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये डैम्पिंग कंट्रोल कर रही है फॉर द रेजोनेंस, और जो लास्ट केस था इसके अंदर इज कंट्रोल्ड बाय द मास। सो जो पिछली 5-6 स्लाइड थी उसका जो क्रक्स है, उसकी जो समरी है, वो आपको यहाँ इस स्लाइड के अंदर नज़र आ रही है। तो आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो इस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और फेज़ लैग का वो आपको तो चल गया होगा कि किस तरीके से फोर्सिंग रेशो डिफॉर्मेशन को अफेक्ट करती है और किस तरीके से फोर्सिंग रेशियो जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो फेज़ लैग को अफेक्ट करता है। एंड देन जो लास्ट एक और चीज़ हमने डिस्कस की कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो आपके फेज़ लैग को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि इन फेज़ है, आउट फेज़ है, क्या चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ भी हमने आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो अब द फेज़ एंगल फाई विच डिफाइंस द टाइम, देखिए ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि फेज़ एंगल क्या है, कि दिस डिफाइंस द टाइम बाय विच द रिस्पॉन्स लैग्स बिहाइंड द फोर्स। जब हमने कहा था ना कि जो रिस्पॉन्स है वो फोर्स के रिस्पॉन्स से कैसे लैग कर रहा है, आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है या बराबर चल रहा है। ठीक है, हमने कहा था भाई इन फेज़, आउट फेज़, तो ये वो चीज़ है। तो दैट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी रेशियो एज शोन इन द फिगर। ये देखें, अगर आप इस चीज़ में, ये जो हमने पहले भी आपको दिखाई थी, ये आपके पास फेज़ एंगल इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो रेड है ये, अगर इस फिगर को आप यहाँ इस डिसरिगार्ड भी कर दें तो ओनली दिस कैन शो यू द फेज़ एंगल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेड जो है वो 1% है, ब्लू जो है वो 10% है, एंड देन जो है वो ब्लैक जो है 20%। ये अगर आप देखते चले जा रहे हैं तो जो आपका रिस्पॉन्स है, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो का इन्फ्लुएंस है ऑन द फेज़ एंगल, यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, इट इज़ एग्जामिन फॉर 3 रीजन ऑफ द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी स्केल। तो वहाँ हमने क्या किया, डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर को देखा। अब हम ये फेज़ एंगल को उन 3 जो केसेस थे हमारे पास के लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केस है, ये मैंने डिस्कस वैसे किया है, मैंने इसलिए ये वाली चीज़ जो दिखाने की कोशिश की है, ये दिस इज़ द केस वेयर द फ्रीक्वेंसी रेशियो इज़ वेरी मच लेस देन 1। क्योंकि यही बात कर रहे हैं ना कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1। तो वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब ये है कि अगर आप इफ़ यू गो बिलो 0.5 वैल्यूज़ तो फिर लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1 आ सकता है। तो इस रेंज के अंदर जो अगर आप वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज दैट द फोर्स इज स्लोली वेरिंग एंड फाई इज़ क्लोज टू 0। इन केस में अगर आप देखते हैं तो फाई जो है ये 1, 2, 3 के केस में फाई इज़ वेरी नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एसेंशियली इन फेज, या हम पहले भी देख चुके हैं कि जो टर्म इस्तेमाल की थी कि इन फेज होगी विद अप्लाइड फोर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि व्हेन फोर्स एक्ट्स टू द राइट द सिस्टम वुड आल्सो बी डिस्प्लेस्ड टू द राइट। इन फेज का जो सिंपल आसान अल्फाज में ये है कि अगर आप फोर्स दाएं जाती है तो रिस्पॉन्स भी दाएं जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इन फेज। तो नेक्स्ट केस आ जाता है, ये देखते हैं कि क्या है, ये रेजोनेंस का केस है। ये अगर आप एक बड़ा सा मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है तो दिस इज़ द केस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज़ 90। इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ 90 डिग्री के ऊपर आके मिल रही है। यहाँ अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, यहाँ नीचे जा रहे हैं तो एंगल घट रहा है। तो ये सारे के सारे कर्व आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 90 के ऊपर जाके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल, अगर एक चीज़ यहाँ शुरू हो रही है तो दूसरी चीज़ उसके पास इस जगह पर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको कर्व में वहाँ इसको आप जाके देख सकते हैं कि फेज एंगल 90 कैसे होता है। एंड द डिस्प्लेसमेंट अटेन इज पीक व्हेन द फोर्स पासिस थ्रू द 0। डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब, इसका मतलब ये होगा जब फोर्स आपके पास 0, फोर्स क्या है, एक आपके पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है, फिर 0 पर आ रहा है और फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड जा रहा है। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस है तो फोर्स जब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से आके दोबारा 0 पर जाएगी तो आपका जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर होगा वो मैक्सिमम पे जाएगा। इस तरीके से जब ये माइनस पे जाएगी तो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर आपने वो एक एनिमेशन वो ब्लैक में मैंने आपको दिखाई थी, उस एनिमेशन पर अगर आप जाके देखेंगे और इस पर्टिकुलर स्लाइड को रख के सामने उसको देख रहे होंगे तो फिर आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ चले जाएंगे। ठीक है, तो 90 का मकसद आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि फोर्स जब 0 है तो डायनेमिक रिस्पांस जो होगा वो अपना पीक अटेन कर रहा होगा, और जब फोर्स पीक अटेन कर रही होगी तो डायनेमिक रिस्पांस अपने मिनिमम वैल्यूज़ की तरफ जा रहा होगा। सो थर्ड जो केस है वो ये है कि इफ़ द फोर्सिंग रेशियो फ्रीक्वेंसी रेशियो इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1 द फोर्स इज रैपिडली वेरिंग, जो आके आपके पास ये वाला केस आ जाता है। ठीक है, ग्रेड 2, 2.5, 3 का केस आ रहा है। तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस केस के अंदर अगर आप ये फाई की वैल्यूज़ देख रहे हैं तो दैट इज़ वेरी मच इक्वल टू 180। अगर आप देखते हैं तो ये 180 के करीब करीब आ रहा है। सिर्फ ये जो आपके पास है 2 रेशियोज़ हैं,
जो कि 70% और डैम्पिंग वाले रेशो हैं, ये फिर यकीनन उससे कम है। लेकिन जो अंडर डैम्प सिस्टम है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि सब के सब जो है वो 180 के करीब करीब मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ 180 का मतलब क्या है कि ये आउट ऑफ फेज़ है। तो ये अगर ये अपने पॉजिटिव पीक की तरफ पहुंच रहा है तो रिस्पांस अपने नेगेटिव पीक की तरफ पहुंचेगा, ये अपने नेगेटिव पीक की तरफ पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव, ये वाली चीज़ इसकी बन रही होगी। ये अगर आप फोर्स ले रहे हैं और ये रिस्पांस ले रहे हैं तो ये फिर यूं करके आपके पास ये मोशन इसके अंदर आएगी। समझ रहे हैं बात को? ये मोशन आएगी, ये जब इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये 100% आउट ऑफ फेज़ है। क्योंकि 180 का मतलब ये है कि 100% आउट ऑफ फेज़। ये चीज़ यहाँ, तो इस हाथ को आप यूं मूव करने लग जाएँ तो ये आउट ऑफ फेज़ की पास आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स एक्स टू द राइट, द सिस्टम वुड बी डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, सो दैट्स द डिस्कशन अबाउट द डिफॉर्मेशन एंड द फेज लैग। आई होप कि मुझे तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़े अच्छे इसके अंदर कंसेप्ट थे और ऐसी चीज़ें थी जो कि आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए आप डिटेल से। जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन रेस करें इन द कमेंट्स, इन द व्हाट्सएप, इन ईमेल, जहां आप चाहते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो डू आस्क मी एंड आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।